Not a film star, not a sports icon, but today we are meeting someone who has made a profound impact on many lives of students. A teacher who shapes our lives and our careers. Meet the Dhruv sir, a guiding force in lives of countless students. Not just by teaching lessons, but also by giving us life lessons. Known widely in Kandivali and beyond, Dhruv sir influences reaches far beyond the classroom. Join us and dive into his story and as a remarkable mentor and a hero in education life. Thank you so much, Diya Maniyar. Thank you. I'm so privileged to answer your questions today. Yes, sir. And I chose to do podcast with you because I always wanted someone to whom I can connect. Okay. And see, the world is round. Once upon a time, I used to ask the questions to you, and you were answering all the questions very honestly. So today, Yeah. I'll be so happy to answer your questions. So looking forward to it. Okay, sir. Thank you so much. So let's start with the first question. Yes. So 25 years of being Dhruv sir and 18 years of Ultimate. So can you just take us back to the journey, like where it all started? Because I have seen a lot of people choosing CEO as a career option, CA as a career option, working into corporates. But for you, why was teaching as a profession? And why did you choose that? So was it a compulsion or it was just a hobby? I've seen most of the teachers' story in the past, where the teachers started teaching because of their compulsion, maybe a financial compulsion. But I would like to say, I always wanted to become a teacher from day one. Okay. When all other my friends were, basically talking about very fancy careers, they wanted to become pilot and they wanted to become something else. I always wanted to become a teacher. Okay. And I am so fortunate enough कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने बचपन में सोचा हम बाद में बड़े होके नहीं कर सकते हैं. True. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने बचपन में सोचा मैं आज वही कर रहा So हूँ. you stick to that. Yes. So most importantly, what happened? I'm so happy with my profession. Even after 25 years, I've seen people getting tired after certain years in the same Correct, profession. correct. But I feel so fresh today, even after 25 years, because every day I'm meeting fresh students. I'm meeting young people, young generation. So just because of that, even I am young. Yes, Getting it? yes. So बहुत important है कि I started my teaching career just I can say after my 12th standard. Oh, My I board think- exams. I'm so sorry to interrupt, but I think you must be around like 16, 17? 17 plus. Okay. Because I finished my board exam somewhere in the month of March 2000. Okay. 3rd March to be specific. I Oh. still know the date. And I started my teaching from 5th of March. Oh. I never wasted that one single day of my 12th standard vacation because I wanted to get into that profession anyhow. Correct. Yes. Okay. So, sir, here's the second question. As an art student who has always learned under your guidance, I have noticed that most of the institutes, the principals always tend to teach accounts, finance or maths. But you are only one of the few, or I can say only two of them, who focuses economics as a core subject. So what has drew you towards it? That's the USP. Okay. When I entered into this profession, one of my mentor asked me कि ध्रुव कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, and he was expecting me to answer सर अकाउंट्स पढ़ाऊंगा क्या या फिर मैथ्स पढ़ाऊंगा? या फिर मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मैथ्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Okay. बट आई टोल्ड सर इकोनॉमिक्स. देन ही टोल्ड मी कि यार जो बिजनेस आपको अकाउंट्स देगा ना वो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं देगा. तो मैंने सर को एक ही बात बोला, जब दुनिया में सब लोग एक ही चीज करेंगे तो मैं भी वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा. आई वॉन्ट टू बी यूनिक. You want to stand out. I want to be ultimate. Oh, so if yes. if I want to be ultimate, I have to be unique. I have to be uncomparable. True. And very importantly, Diya, it is a very good question you asked me, which people don't know. Everybody in the field of Commerce Institute, the principals are either teaching accounts, 90% of them, or say for example finance or maths. I am one of a principal who is guiding this institute from last 18 years. कि शायद पूरी मुंबई में एक या दो क्लासेस होंगे कि जहां प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है और इकोनॉमिक्स के दम पे पूरा क्लास चला रहा है.
लेकिन आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये शुरू किया, बच्चे लोग स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास कहाँ से आते थे. True. And I think you are also an art student, Same. so you know that. Even I was the one who came for economics too. Yes, exactly. So मैं तो एक ही बात बोलूंगा सभी बच्चों को, और ये आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं सभी बच्चों को, आज के नए जनरेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख दूंगा. It's a life lesson once again for me. That don't do something which is very common. Do something which is out of the box. Because something which is common is, I know, more easy. आपको जल्दी से सब चीज मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ अनकॉमन होगा तो भले कुछ स्लो मिलेगा लेकिन वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा. And economics was my forte. Okay. I still remember I used to go to tuitions when I was in 9th standard. And 9th and 10th was the first year where economics was introduced. और हमारे वक्त क्या था कि 9th standard और 10th में geography के साथ economics होता था. Economics was of only 25 marks. Okay. And 50 marks geography paper. 75 marks का board paper होता था. Now when I entered my board like examination hall, everybody was reading geography. और मुझे मेरे एक दो फ्रेंड्स जो आजू बाजू में थे वो मुझे ऐसा पूछते थे कि यार तू कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ा है? हमने तो इससे इकोनॉमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया, हमने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा है. तो मैंने उनसे उल्टा क्वेश्चन पूछा कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तू मुझे ज्योग्राफी में हेल्प कर, मैं तुझे इकोनॉमिक्स में हेल्प करूंगा. एंड आई डोंट नो, इट वाज एक्चुअली अ मैसेज फ्रॉम द गॉड और समथिंग. वो 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स से जहां बच्चों को वो बुक में इंटरेस्ट नहीं था, सब्जेक्ट में, I started developing that interest in that subject. Okay. And I was so fortunate when I was in my college in FITC, my teacher, and I think आज मैं जो भी हूँ economics में, it's all because of my teacher Archana ma'am. Okay. I would like to say publicly tell, because she guided me, she motivated me, and out of 5 years of my college, 4 साल ऐसा हुआ कि मैं मेरे कॉलेज में टॉपर रहा हूँ economics में. So this gave me a motivation कि why accounts से accounts भी आता था, मैं सीखा सकता था, लेकिन मैंने पहले बोला वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है. I wanted to do something uncommon and so I am ultimate. One more question according to this, कि कई बार कैसा होता है ना कि पेरेंट्स डू नॉट अग्री कि यू नो आपके टाइम पे कि यार तू टीचर बनेगा, तू तेरे को जॉब नहीं करना है, तो was there any such thing with your parents? See, I was like academically good. Okay. तो 12th के बाद मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो प्रोफेशनल कोर्स में, तो मेरे घर पे मेरे वन ऑफ द रिलेटिव CS का फॉर्म लेके आए, बिकॉज आई वाज वेरी गुड विद थ्योरी, लाइक यू नो. तो CS का फॉर्म मेरे घर पे मेरे पापा के ड्रॉवर में पड़ा है. एवरी डे यू नो पापा यूज्ड टू आस्क मी फॉर्म भरा. लेकिन आई डोंट नो, एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे डर था CS से नहीं, कि अगर मैं CS बन जाऊंगा, ये कॉर्पोरेट कल्चर में घुस जाऊंगा, तो शायद मैं टीचिंग मेरा छूट जाएगा. एंड टीचिंग वाज माय ड्रीम, टीचिंग वाज माय पैशन. तो मुझे वो टीचिंग नहीं छोड़ना था. आफ्टर 15 डेज पापा ने बोला अभी यार अभी लास्ट डेट आ रहा है. मैंने बोले पापा मुझे CS नहीं करना है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू टीचिंग, आई विल डू समथिंग विच इज टीचिंग ओरिएंटेड. Okay. So I think I'm so fortunate, and I think most of the parents today have to understand this. Never force a child to do something. You have to always ask them what is their interest. उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आप काम करवाओगे ना तो वो लाइफ में सक्सेस मिलेगा. आपके इंटरेस्ट के मुताबिक काम करवाओगे और वो अगर शायद कुछ नहीं भी होगा तो वो आप पे बोलेगा कि पापा आपने बोला इसलिए मैंने किया. मैं CA हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा फॉर एग्जांपल बेटा CA बने. ये सब छोड़ दो, वो सब पुराने जमाने की बात है. ट्रू कि भाई मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे पापा से फॉर एग्जांपल मेरा सन बिजनेसमैन बने. नहीं, आई हैव टू बेसिकली आस्क हिम व्हाट इज योर इंटरेस्ट. तो आई थिंक आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरा फैमिली, मेरी मम्मी डैडी एट दैट टाइम नेवर इवन आस्क मी वन सिंगल टाइम कि नहीं आपको क्यों CS नहीं करना है, CS करना ही पड़ेगा, अगर तू ये करेगा तो तुझे बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा. सी टीचिंग वाज अ स्ट्रगल एट दैट टाइम. वो 5-7 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. 1500 रुपए की नौकरी से मैंने शुरू किया है. तो आगे कितना जीरो लगाना वो मेरे पे था. Correct. And it all happened because of my hard work. That's really Yes. nice. Yes. So I was really fortunate to be a part of Ultimate, and I have seen that you always host a festival known as Darpan. So can you just tell me कि आप क्यों ये करते हो? Like you know this fun going environment, ये मजाक वाला, ये यू नो अब मैंने कई बार देखा है कि आप क्लास में भी मजाक उड़ाते हो या कुछ भी ऐसा यू नो विच इज़ फन, लाइक स्टूडेंट्स एंगेज टू इट. तो व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट? लाइक आपने क्यों ये सब चालू किया? वरना मैंने तो देखा है कि क्लासेस में पढ़ो लिखो ख़त्म. बट व्हाट इज़ दिस दर्पण एंड आपने कब क्यों ये चालू किया? This actually makes me young. Oh, This okay. actually feels me young. Okay. It gives me a fuel
to do something new every year. मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी बताता हूँ. Okay. सबसे पहले दर्पण क्या है. मैंने देखा 18 years before हर एक कॉलेज के कोई ना कोई फेस्टिवल्स है. कोई कॉलेज का क्षितिज है, कोई कॉलेज का उमंग है, कोई कॉलेज का कुछ और है. तो मैंने सोचा कि ये सेम कॉलेज का एनवायरनमेंट हम मेरे क्लासेस के बच्चों को क्यों ना दे सके. बराबर. तो हमने भी शुरू कर दिया कि भाई हमारे भी खुद का एक कॉलेज जैसा फेस्ट होगा. हाँ जी. उसका नाम दर्पण रखा. अभी दर्पण मतलब क्या. दर्पण इज योर रिफ्लेक्शन. ओके. आदमी सब चीज से दूर जा सकता है, आदमी कभी अपनी परछाई से दूर नहीं जा सकता. और एक बात मैंने स्कूल में एक्सपीरियंस किया. आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल. जूनियर केजी से लेके नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल था. लेकिन ये 10-12 सालों में मैंने स्कूल का एनवायरनमेंट देखा जो अभी भी बहुत सारी स्कूलों में है. और ये बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट है जहां हर एक स्कूल में टीचर्स हर एक क्लास में से सिर्फ वो 2-5 बच्चे जो है ना उनको ही सब चीज पूछती है. पार्शियलिटी. मैं पार्शियलिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, उनको ही मोटिवेशन. हाँ, क्योंकि वो एकेडमिकली स्ट्रांग है. अगर वो समझो कि बच्चों को वो प्रेयर के लिए बुलाना है ना तो फिर भी वो 5 बच्चों को पूछेगी. इतना बड़ा बड़ा हमारे स्कूलों में बेसिकली क्या बोलते हैं, वो कल्चरल फेस्ट होता था, एनुअल डे होता था. उसमें वही 5 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. स्कूल का हेड बॉय, स्कूल का हेड गर्ल, स्कूल में मॉनिटर, वो 5-6 बच्चों के इर्द गिर्द रहता था. ऐसा नहीं था कि बाकी के बच्चों में हुनर नहीं था. चांस ही नहीं मिलता था. According to me, every child has something which is hidden. What is the role of a teacher? Is not just to teach a subject and go. Okay, from the classroom. You have to give chance to everybody. You ask them. आप पूछो तो सही कि तू कर पाएगा. आपने उसको पूछा भी नहीं मतलब आप उसको ये भी लायक नहीं समझ रही हो कि वो कुछ कर सकता है. तो मैंने जब मेरे क्लासेस में फेस्टिवल शुरू किया, मेरा मेन इंटेंशन क्या था कि मैं ऐसे बच्चों को स्टेज पे लेके आऊं जिन्होंने 10-12 साल 15 साल, बिकॉज मेरे पास 16 साल के बच्चे आते हैं, दे कम टू FIJC. करेक्ट. ये 15-16 साल में कभी स्टेज पे पांव भी ना रखा हो क्योंकि टीचर ने कभी उनको पूछा ही नहीं. और आप मानोगे नहीं, जब ये बच्चे पहली बार स्टेज पे आते थे और तब मैं पेरेंट्स को खास उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाता था, पेरेंट्स मुझे इतना मुझे थैंक्स बोलते थे कि सर ये पहली बार मेरा बच्चा स्टेज पे जा रहा है, वो फैशन शो कर रहा है, वो डांस कर रहा है, वो कोई स्पीच दे रहा है, वो होस्ट कर रहा है. अभी आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आप भी ऐसे, अभी आप मेरा आज समझो कि आज पॉडकास्ट कर रहे हैं. करेक्ट. तो ऐसा नहीं कि ये आपका प्रोफेशन है, बट आफ्टर डूइंग दिस पॉडकास्ट गॉड नोज यू कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड इंटरव्यूअर्स. और आप समझो आज मैं बैठा हूं, कल आपके सामने कोई बड़े स्टार्स बैठेंगे. दिस गिव्स यू मोटिवेशन. यस यस. सो दिस वाज माय इंटेंशन. ऑफ कोर्स ह्यूज मनी गोज देयर. ये दर्पण करना कोई समझो कोई आम बात नहीं है. अभी तो हम लास्ट 5-6 सालों से क्लब्स में कर रहे हैं बच्चों को. और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मेरे फॉर एग्जांपल कल्चरल इवेंट में आए. ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल यही आएगा. सी हर एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होना बहुत कॉमन बात है. यू कैन बी वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, बट you know along with that I have to also give opportunity to all others. Correct. वो लास्ट बेंच वाला रहेगा, फर्स्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच ही रहेगा, ऐसा मुझे कल्चर नहीं चाहिए क्लासेस में. हाँ, मेरे लिए ना तो कोई कॉलेज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ना तो कोई आपका सरनेम इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एवरीबडी इज स्टूडेंट, एवरीबडी हैज सम पोटेंशियल, सो एवरीबडी शुड बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस. Everybody is equal actually. Yeah. Yes, everybody is equal according to me. Correct. जो आज के बहुत सारे टीचर्स अभी भी स्कूल में नहीं समझ रहे हैं. बराबर. वो स्पोर्ट्स डे में भी वही बच्चे को बुलाएंगे, वो बस 5-6 में से. अरे भाई स्पोर्ट्स डे में तो कम से कम वो फॉर एग्जाम्पल बैक बेंचर्स को बुला, वो तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वो नहीं बुलाएंगे. हमारे हिंदी में हम लोग जब एक स्कूल में थे, हमारे हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, चाटुकारिता भी एक कला है. ये 5-6 जन है ना, उसको इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो पूरे दिन टीचर को चाटते थे. अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल भाषा में, नहीं होना चाहिए. दिस कल्चर हैज टू बी ब्रोकन. True. Yes. Sir, 25 years in this industry and 18 years of ultimate. So हर एक की लाइफ में और हर एक के प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आता ही है. So what are your ups and downs in relation with the competitors around you? I would like to say only one important thing. Okay. Trust yourself. Trust the process. Nobody can harm you. Correct. Because हम जब कोई बिजनेस में हैं
हम कभी भी दूसरे के कंधों पे से गोली चलाएंगे ना तो आपके बिजनेस को अफेक्ट होगा। लेकिन when you have confidence in your own self that I am the teacher, I am the mentor, I can do something, I have done something, so I don't think so these people will affect you. And just tell me, Diya, in which business there is no competition? In every business, sir. That is the reason. Yeah, that is the Even reason if I asked you go you. to a corporate world, Yes. even there's a competition between the employees. Very true. कि भाई Very किसको true. promotion पहले मिलेगा? हाँ जी. Correct. So I correct. think everybody, and especially the young generation today, should understand this. Competition and compliments go hand in hand. Correct. When you love compliments, you should also love competition. True. And I personally always love compliments because I've always got more compliments to beat my competitors. इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि दूर दूर तक कोई नहीं आपके इसलिए लिए। मैं भी बोलता हूँ, अरे आप बोलते हो दूर दूर तक कोई नहीं, और मेरे सब्जेक्ट में तो दूर 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 तक कोई नहीं। यही तो सही बात है Because सर। the problem is what you know, हमारे सब आजू बाजू के इर्द गिर्द के सब लोग एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। हमने कभी वो एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया है, बराबर हमारे है। लिए तो सब सब्जेक्ट, हम तो भाई मोदी वाले हैं, हमारा एक ही उसूल है, सबका साथ सबका विकास। तो Correct. सब्जेक्ट में भी 6 सब्जेक्ट है, तो भाई सबका साथ दो ना। सिर्फ अकाउंट्स पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हो, सिर्फ मैथ्स पे क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं तो बोलता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूँ, तो मैं भले इकोनॉमिक्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर स्टूडेंट द परसेंटेज इज गोइंग टू मैटर। वो शायद इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 लेके आए, but that is not going to be matter. Say for example, important for him. Important is what? आपको सभी सब्जेक्ट्स में इक्वली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात बोलूं ऑन द लाइटर नोट, अभी आपको तो पता है जहां मोदी होगा वहां पप्पू तो होगा ही ना। तो कंपटीशन से कभी नहीं डरना चाहिए। कंपटीशन को हमेशा कॉम्प्लीमेंट लो, और कंपटीशन एंड ऑलवेज डू योर स्वॉट एनालिसिस। हम जब ओसी में पढ़ाते बच्चों को, स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, और चेक योर स्ट्रेंथ, चेक योर वीकनेस, grab the opportunities and diffuse the threat. Yes. That's the key. That's the key to success. Sir, I have heard और I have seen कि आप मोदी के बहुत बड़े फैन हो, और आपके आंसर से भी लग ही रहा है कि आप मोदी के बहुत बड़े फैन हो। So sir, as an economic student, what are your views on Indian economy? कि आप क्या क्या कहना चाहते हो, कि what are your views कि कोई changes लाना चाहिए, कि क्या क्या है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी आज बूस्ट कर रहा है? I think Modi is now into his third term. तो I think approximately last 10 years की अगर हम बात करें, और आपने बोला since I'm economics teacher, ऐसा ही कोई किसी का भक्त नहीं बनता है। करेक्ट। हम भगवान के पास भी जाते हैं ना, तो भगवान से कुछ फॉर एग्जाम्पल अपेक्षा रखते हैं कि वो हमको ये देगा, हमको ये देगा। तो मैं अपने आप को मोदी भक्त नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को एक ही बात बोलूंगा, अ पर्सन हु इज अ गुड लीडर, अ पर्सन हु इज रियली डूइंग गुड। Why we should not follow him? हमने मोदी से पहले 15 years we've seen Indian governments who are completely paralyzed. जहां हमारे, and I am so sad in that case. See, Dr. Manmohan Singh was the prime minister for 10 years. Correct. And according to me, he was the best economist, and he is the best economist. लेकिन जब वो छोड़ के गए 2014 में, Indian economy was in the worst situation. Yes. Because Agreed. he was not given the powers. He was only an acting prime minister. वो जो भी विचार करते थे, उनको वहां मैडम जी को पूछना पड़ता था। कम से कम आज हमारे पास कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने आप अपने बलबूते पे फॉर एग्जाम्पल कुछ कर सकता है। करेक्ट। दूसरा, हिस्ट्री क्या हुआ, थर्ड टर्म जब मोदी आया, वी हैव गॉट स्टेबल गवर्नमेंट फॉर 15 years। और स्टेबल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में कितना होता है ना, वो शायद आप जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन दुनिया के सब देश जानते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मजबूत सरकार, करेक्ट, एंड नॉट अ मजबूर सरकार। करेक्ट। तीसरी बात, आपने बोला मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या नहीं किया। मोदी ने सबसे पहले 2014 में जनधन लेके आए। जनधन योजना में क्या किया कि जिनका भी बैंक अकाउंट नहीं था, सबको बोला कि तुम 0 बैलेंस वाले अकाउंट ओपन करवाओ। करेक्ट। अच्छा, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? What was the intention कि आज गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स दे रहे हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट वहां से बेनिफिट तो देता था, लेकिन वो गांव तक पहुंचते पहुंचते यहां से फॉर एग्जांपल दिल्ली से 100 रुपया निकलता था, गांव तक फॉर एग्जांपल 25 रुपया पहुंचता था। 75 रुपीज ऑल दैट मिडलमैन यूज्ड टू गल्प। बराबर है, वो गरीब ही रहते थे, एंड द बेनिफिट वाज नॉट गोइंग टू द पीपल।
सेकेंडली इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आज मैं बहुत सारी चीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर हम जनधन की बात करें, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की, crores of people have got their homes. Correct. सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द रेड फोर्ट ही इज टॉकिंग अबाउट टॉयलेट्स. हमारे इंडिया में आज 60 इयर्स के बाद टॉयलेट्स की बात होने लगी, बिकॉज गांव में टॉयलेट्स नहीं थे. He was worried because he actually was living in a family which was a poor family. तो उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है. आज जब मैं 2 साल पहले फॉर एग्जांपल जब गांव में गया था, तो मुझे देखा हर घर में टॉयलेट्स बन गए. Every school have a separate toilet for boys and girls. So it's a challenge. So don't you feel it is important for the economy? अच्छा, आप अगर मोदी को ब्लेम करोगे टमाटर क्यों महंगा हो गया? Is Modi meant for tomatoes? No. Is Modi say for example meant for this? Modi is meant for something very big. अभी आपको पता है कि 10 साल पहले जब हमारे मुंबई में अटैक हुआ था, यहाँ से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हम ये करेंगे वो करेंगे, ओके, कुछ हुआ? वो लोग ये हमारे घर पे घुस के आके मारते थे. हमारे मोदी ने क्या किया? उनके घर पे घुस के मारा. बराबर है. अरे मोदी आप से फॉर एग्जांपल हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, सीधे ऊपर से गए और वहां मार के आ गए. सी दीज आर ऑल अचीवमेंट्स. इंपॉर्टेंटली अभी तो मैं चंद्रयान की बात करूं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और मैं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राम मंदिर. मेरे और आपके जैसे हिंदूज के लिए राम मंदिर क्या है? इट इज अ बिगेस्ट थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग. 500 साल तक हमारे राम भगवान वो टेंट में रहे, बराबर है. 500 साल के बाद भगवान को अपना घर मिला. एक आदमी के स्तर पे, ओके, एट एन इंडिविजुअल लेवल, इफ वी डोंट हैव आवर ओन होम, वी फील सो सॉरी. ये हमारे भगवान के पास घर नहीं था, एंड नोबडी वाज बरीड. सो दीज आर अचीवमेंट्स. And from economy's point of view, we are the fastest growing economy of the world. Yes. That is also because of Modi, I can say. That is all because of Modi. ये हमारा GDP super growth हो रहा है. FDI, foreign direct investments, I can say, are coming. मतलब we are the first, या fastest हमारे, for example, इंडिया में, I say foreign, because foreigners believe कि इंडिया में एक मैग्नेटिज्म है. It attracts foreigners to make investments in India. Correct, yeah. So this is Modi. So I don't think so anybody जो मोदी को शायद प्यार नहीं कर रहे हैं, वो शायद ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले बार जब शायद पप्पू आ जाए या फिर उसका कोई भाई बहन आ जाए तो कुछ अच्छा होगा. लेकिन भगवान ये हमारे देश को बचाए, उनके सोच को बचाए. And I don't think so people should depend on Modi, and for example people should talk about Modi for tomatoes and brinjals and everything. I think Modi is meant for something big, and he will do something. He has a very far vision, I can say. Far vision. And whatever he is working today, he is working not for this generation, he is also working for the future generations. Future generation, yes. 2036 Olympics. Yes. इंडिया ने कभी ओलंपिक्स के बारे में ओ भी नहीं सोचा था. और 2036 के ओलंपिक्स के बारे में इंडिया इज गोइंग टू से फॉर एग्जांपल पुट इज बिड. तो ये भी एक अचीवमेंट नहीं है. क्या हुआ दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में, आपको पता है ना. I don't know how many young generation is going to basically understand my question, but this is what Modi has done for India. Yes, sir. Completely agreed on your point, sir. Sir, I was your student 3 years back. And one thing that I've always noticed, which stood out to me, was how do you maintain such, good rapport with your students, be it present students or be it past students? What drives you to building these long-lasting relations with your students according to your alumni, your present students, your ex-students who are even married? So can you just give me your thoughts about it? I think being a teacher, you always teach your students to be selfless. So better said than done. You teach students to be selfless. So how a teacher can be selfish? True. If you are my student, I'm good with you. If you're not my student, then I don't talk to you, I don't say respect you, I don't build up that relationship. That's wrong. For others, teaching may be a business. For me, teaching is not just a business. For me, teaching is my love, my first love, my passion, my comfort. And when you say 25 years of being Dhruv sir, how is it possible that a person stays at the top for 25 years? Yes. It's all because of the love and support of my students. One thing that's why, that's why I would like to say, I never call my past students my alumni. They're never my alumni. You are never my alumni. Yeah. You are my student. Yeah. And once a student, forever a student. Forever student, yes. Yes. So I was just saying कि 25 years of being Dhruv sir,
कई बार ऐसा भी देखा है कि पीपल गेट बोर्ड, अभी लगता है कि चलो ठीक है बहुत किया, अभी आई वांट टू गेट रिटायरमेंट. सो एनी थॉट्स अबाउट रिटायरमेंट सर? रिटायरिंग? ओह, 1 day, 2 days, 4 days, 5 days मैं घर पे बैठता हूँ ना, तो मैं घर पे लेक्चर देना शुरू करता हूँ. तो मेरे घर पे मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, सब लोग बोलते हैं भाई उससे अच्छा भाई क्लासेस में जा, हमको लेक्चर मत दे, बिकॉज मैं बोले बिना रह नहीं पाता हूँ. आई डोंट थिंक आई एम रिटायरिंग इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट बाई कंपल्शन. ये मेरा कोई फोर्स नहीं है, ये मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पसंद है. I am still found fresh even after 25 years. So this is important. I don't think so. And of course, I still have certain responsibilities towards my parents, towards my family, my wife, my kids. So definitely I cannot retire just because of that as well. But I don't think so. Retirement is somewhere. मतलब वो दूर तक अभी तक मैंने सोचा नहीं है. And अगर आप मुझे बोलोगे आप बोर हो चुके हो, बिल्कुल नहीं. मुझे आज इतना ही मज़ा आ रहा है. आज से 25 साल पहले जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तब भी वही फोर्स था. आज 25 साल के बाद भी वही फोर्स है. When I enter the classroom, I start like a fresher. I basically want to give my best of them. All right. So it's never in my mind. Yes. That's a very good thought. That's what keeps you going. And that keeps me young as well. Oh yes. Okay, staying with the young people. Yes. Correct. बहुत सारी एजुकेशन की बात हो गई सर. सर, एनी लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट योर स्टूडेंट्स बट एवरीबडी? I always tell to my students, don't just learn lessons. Lessons and chapters which are there in the book is going to last only for 1 year. आपने एग्जाम दे दिया, आप चैप्टर भूल गए, खत्म. What you learn from that particular lesson or a chapter is the moral. हम उसको बोलते हैं लाइफ लेसन. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. I teach OCM to my students. Okay. There is a chapter known as Forms of Business Organization, where we learned about different forms of business: sole trading, concern, partnership, joint stock. जब हम सोल ट्रेडिंग से पार्टनरशिप में जाते हैं तो पार्टनरशिप के ऑफ कोर्स देयर आर मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एक पॉइंट आता है कि पार्टनरशिप्स ज्यादातर ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमंग द पार्टनर्स. Because everybody have their own taste, their own likes and dislikes, own preferences. तो वहाँ हमने एक लाइन लिखा है. So what is the moral of the story? We are strong as we are united, and we become weak as we are divided. Just such an important thing in life. Such an important thing. This is life lesson. You may not remember partnership firm का features, partnership firm का merits and demerits, for example, just after 2 years or 1 year. लेकिन ये line है ना, tagline, ये आपको life time तक याद रहेगी कि we are strong as we are united and we become weak as we are divided. मैंने दूसरी देर आपको बोला कि I think one of the previous question कि when I was in 9th standard हमको एक हिंदी में चैप्टर था, चाटुकरिता भी एक कला है. अभी वो चैप्टर के अंदर क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लाइन मुझे हिंट हो गया, यहाँ मुझे पंच हो गया. वो मैं आज देखो वो से फॉर एग्जांपल आपके सामने यूज you still remember because you've learned, because you don't have to just understand the chapter and mug up the question answers. Correct. I always see, आपको एक बार बता दूं, आप कुछ भी पढ़ लो, आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, what you learn is different and what you practice in practical life is different. हम जो थियोरी में पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है. आप सीए भी बन जाओ ना, सीए में जो आपको फॉर एग्जांपल सीए फाइनल हो जाओ, सीए में जो पढ़ते हो ना, आप जब जॉब करते हो ना आपको 90% चीज अलग ही सीखना है. Correct. Because you learn always out of your experience. So this is one of the very important message which I would like to give to my all students. Don't first of all mug up मत करो, रट्टा मत मारो. वो मार्क्स के लिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल don't be hungry for marks. Be always hungry for knowledge. When you have knowledge, it will last forever. It's very important. So learn life lessons. I agree to that. चैप्टर मत सीखो, वो चैप्टर से क्या सीखने मिलता है वो सीखो. That is important. I agree to that, sir. So let's end with something like really interesting. Like throughout your whole journey, whom would you thank the most? Like who supported you the most and whom would you like to thank the most? I started at a very tender age of 17 and a half years. So of course the first people to thank are definitely my family, my parents, who actually supported me throughout this journey and they're still supporting me. Who believed in you to choose career. Yes, as and teaching. They never forced me to do something else. Secondly, I would like to thank my wife, my child, because आज जो ध्रुव सर है ना, वो सिर्फ उसके मम्मी डैडी के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेरे चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है. आई एम अवेलेबल टू सो मेनी पीपल. लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ?
when they are giving me that particular freedom of being available to so many people. They have never told me that basically आप सबके लिए अवेलेबल हो तो वहाँ कोई जगह पे उनके लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाता है. सो बेसिकली सी मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, बीइंग अ टीचर आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सबका प्यार मिलता है, हमको भी सामने कुछ उनको दिखाना होता है. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यस थैंक्स की अगर आप बात करो देन इट्स नंबर 1 माई पेरेंट्स, माई वाइफ, माई चाइल्ड, and of course my hundreds and thousands of students have learned under me from last 25 years. I think I would not have existed without their love and support. एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, प्यार क्या होता है. नवरात्रि में मैं एक दिन like after post नवरात्रि when I was leaving out of the premises, one of my student saw me और उसने क्या किया, पीछे से आया and he actually closed my eyes. Oh. And of course I was not able to recognize. तो उसके बाद जब उसने आँख खोला, he was my student 23 years ago. Oh. और जब उसने आँख खोला तो तब हम उसको एक निकनेम से बुलाते थे. मैंने सीधा वो निकनेम बोला. That particular, मैं भी चाइल्ड नहीं बोलूँगा, that particular person got surprised. Oh. That sir, we are meeting after all 20 years and you still remember my nickname. Oh, this is love, this is affection. That is so मैंने sweet. उनको एक सिंपल सा चीज बोला, आपने मुझे बनाया तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ. बहुत बढ़िया. Yes, very true, very true. So sir, with this we end our conversation here, and I'm really thankful to have you here. We also understood your various perspectives on various sections like politics, Indian economy, other curricular activities, etc. And I congratulate you once again for your 25 years of being the Dhruv sir. Thank you. And I really hope to host you again and celebrate 50 years of being Dhruv sir. Wow, that's wonderful. Yes, Thank sir. you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Thank you sir. so much. Yes. Yes.